শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 41 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 10.41 onwards। বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়, বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়, সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয়। সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয়। বাসুদেব দত্ত হচ্ছেন চৈতন্য বৃক্ষের ঊনবিংশতিতম শাখা। ঊনবিংশ মানে 19 শাখা। তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তি এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। সহস্র বদনে তার গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। বাসুদেব দত্ত इनका अवतार था प्रहलाद महाराज का। তাৎপর্য, মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত চট্টগ্রাম বাসিন্দা ছিলেন। এবং 3 ভাই তা বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ দত্ত লিখতে আগে। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, যার স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়। বাসুদেব দত্ত শ্রীকৃষ্ণের এত বড় ভক্ত ছিলেন যে কৃষ্ণ তার কাছে বিকৃত হয়েছিলেন। বিকৃত হয়েছিলেন মানে বহুত প্রিয় है ऐसे घनिष्ठता, इस तरह से लीजिए, ऐसा नहीं कि सोल्ड आउट बिक्री हो गई। বাসুদেব দত্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তের প্রতি এত সন্তুষ্ট ও স্নেহশীল ছিলেন যে তিনি বলতেন, আমি বাসুদেবের, আমার এই শরীর বাসুদেব দত্তের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং সে আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রি করতে পারে। মানে इतनाई महाप्रभु उनको पसंद करते थे, ऐसे बोलते थे। তিনি সত্য করে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন এবং কেউ যেন তা অবিশ্বাস না করে। তিনি বলেছিলেন, সত্যি আমি কহি শুনো বৈষ্ণব মণ্ডল, এ দেহ আমার বাসুদেবেরও কেবল। বাসুদেব দত্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু যদুনন্দন আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ये हिरणमय गौरांग प्रभु कहाँ है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। এই যদুনন্দন আচার্য ছিল এদের কুলগুরু, মানে এনার বাপ ঠাকুরদা সবাইকে দীক্ষা দিয়েছিল, ঠিক না? রঘুনাথ দাস গুরু যারা জাগতিক দীক্ষা পরবর্তীকালে মহাপ্রভু থেকে দীক্ষা নিয়েছেন নাকি? ঠিক বলছি? কি কে দীক্ষা নিয়েছেন? এই যে যদুনন্দন আচার্য, এ তো রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কুলগুরু ছিল নাকি? হ্যাঁ, ওনার গুরু ছিলেন, কুলগুরু ছিলেন, মানে পরিবারের ফ্যামিলির হিরণ্য মজুমদার, গোবর্ধন মজুমদার, এদের বাড়িতে ইনি তো হেল্প করেছিলেন না পালাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাত্রি 3টার সময় উনি পৌঁছেছিলেন ওই দুর্গা মন্দিরে, উনি থাকতেন আর সবাই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে, এখানে লেখা আছে দীক্ষা গুরু বাসুদেব দত্ত। বাসুদেব দত্ত কিন্তু মামগাছিতে ওনার জায়গা আছে, মানে ওগুলোতে যাবেন, এক্সট্রা ইনফরমেশন না, আই এম জাস্ট ক্লারিফাইং দ্য ইনফরমেশন হুইচ ইজ গিভেন। বাসুদেব দত্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী দীক্ষা গুরু, ঠিক আছে। যদুনন্দন আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তো যদুনন্দন আচার্যের দীক্ষা গুরু হচ্ছে বাসুদেব দত্ত। ক্লিয়ার? নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে তো পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা?
দীক্ষা আলাদাভাবে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, মানে শিক্ষা গুরু ওনার কাছেই ছিলেন, কাছাকাছি। তো 18 বছর পুরীতে ছিলেন, আলাদাভাবে দীক্ষা দিয়েছেন বলে এখানে কিছু কোনো জায়গায় সময় আছে। যদুনন্দন আচার্য যা দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন সেটাই শেষ দীক্ষা। হুম, আর কোথাও কিছু উল্লেখ নেই মনে হয় না। হ্যাঁ, আর কিছু উল্লেখ নেই। ठीक है। तो ये जो वासुदेव दत्त था, ये यदुनंदन आचार्य उनका दीक्षा गुरु था। और यदुनंदन आचार्य कौन था? रघुनाथ दास गोस्वामी का दीक्षा गुरु। क्लियर? बोलिए सत्यभामा माता जी। प्रभु वासुदेव दत्त और रघुनाथ दास गोस्वामी दोनों एक ही थे। वॉशिंग पाउडर निर्मा। प्रभु तो यहाँ क्यों लिखा हुआ है वासुदेव दत्त ने रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बाद में जो रघुनाथ दास गोस्वामी बने, ऐसे क्यों बोला हुआ है? हिंदी में क्या लिखा है हमको बाबा जानी ना। तो जो लिखा है वही ना प्रभु, हम सोचे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में लिखा है माता जी कि रघुनाथ दास जो थे वो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने। ठीक है, সেই বর্ণনা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 161 শ্লোকে রয়েছে। বাসুদেব দত্তের ব্যয় বাহুল্যের প্রবৃত্তি দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তার সরখেল বা সেক্রেটারি হয়ে তার অর্থ ব্যয় সংযত করতে আদেশ দেন। अच्छा, मैंने वासुदेव दत्त बहुत मैंने भक्ति में खर्चा वर्चा करते थे भक्त लोग के पीछे। तो महाप्रभु बोला अरे भाई तुम गृहस्थ हो, तुम ऐसे करके खर्चा करोगे तो कैसे चलेगा। तो फिर शिवानंद सेन तो मेन फाइनेंसर था, जमींदार का था, टाका पैसा कैसे अच्छा हैंडल करना सकता था। तो शिवानंद सेन को महाप्रभु ने आदेश दिया तुम ये वासुदेव दत्त का अकाउंट्स थोड़ा देख लेना। বাসুদেব দত্ত জীবের প্রতি এত করুণাময় ছিলেন যে তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবের পাপ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে উদ্ধার করে দেন। এই প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার ৫৫ পরিচ্ছেদের 159 শ্লোক থেকে 180 শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। ঠিক আছে, वासुदेव दत्त ने बोला है महाप्रभु हमारा ये संसार का जीवों का दुख हम देख नहीं पाते, बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, संसार में जितना लोग है उनका जितना पाप है आप मेरे को दे दीजिए। बस ये सुन के सत्यभामा माता जी बहुत खुश हो गई। तब बोला था, अभी नहीं। ठीक है, तो बोला संसार का जितना पाप है सब मेरे को दे दीजिए, लेकिन सबको मुक्त बना दीजिए, सबको भगवान के धाम भेज दीजिए। महाप्रभु बोला था कि हे वासुदेव तुम जो देख रहे हो संसार ये सिर्फ एक ब्रह्मांड का संसार है, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। अगला पैराग्राफ में लिखा है শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে বর্ণনা করেছেন নবদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনের অনতি দূরে পূর্বস্থলী নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। পূর্বস্থলী सुना नहीं कभी? विष्णुप्रिया का नेक्स्ट स्टेशन, नदिया का नेक्स्ट स्टेशन है नवद्वीप का। और नवद्वीप के बाद विष्णुप्रिया का एक 2 स्टेशन बाद होगा पूर्वस्थली। পূর্বস্থলী আছে এবং সেখান থেকে প্রায় 1 মাইল দূরে মামগাছি বলে একটি গ্রাম আছে যা হচ্ছে শ্রীল বৃন্दावन दास ठाकुरेर जन्मस्थान। वृंदावन दास ठाकुर याद है, कल हम लोग ने पढ़ा था नारायणी के, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, जो श्रीवास ठाकुर का भाई का बेटी का पुत्र था। ठीक है दिलीप प्रभु, সেখানে বাসুদেব দত্তর প্রতিষ্ঠিত শ্রী মদন গোপাল मंदिर রয়েছে। हम लोग गए थे ना, क्या गए थे याद नहीं, ये हम लोग गए थे जब परिक्रमा में। लास्ट में हुआ, आप चला गया हो गया लास्ट को, दूसरा साल गया है। दूसरा साल है। তো সেখানে মদন গোপাল মন্দির রয়েছে। গৌরীয় হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে। গৌরীয় মঠের ভক্তরা এখানে
সেই মন্দিরের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে সেবা পূজা খুব ভালো মতো চলছে। শিলা প্রভুপাদ লিখেন প্রতি বছর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় তীর্থ যাত্রীরা মানগাছিতে যান। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন থেকে নবদ্বীপ পরিক্রমা শুরু করেছেন তখন থেকে এই মন্দিরের পরিচালনা খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। यस बोलिए सुधामयी वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल हम लोग जो पंकज प्रभु पढ़ा रहे थे वो श्री नवदीप धाम महात्म्य में, उसमें पढ़े कि माम गाछी का नाम ही मोद्रुम द्वीप है। मोदुद्रुम द्वीप में मामगाछी है। हाँ, ऐसे मतलब उसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो आप लोग को याद नहीं है सत्यवा माता जी? आप लोग गए थे तो इधर इस बार ये मामगाछी, बाकी कहाँ गया? नरेंद्र सर्व प्रभु सब भूल गया। अभी तो कैसे পরীক্ষা পূজা করেছেন তো এটা মনে আছে? লাস্টে গেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে, এসে भेजना पड़ेगा। ओके, জগতে যতেক জীব তার পাপ লইয়া, জগতে যতেক জীব তার পাপ লইয়া, নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছড়াইয়া। আসলে বাসুদেব দত্ত ঠাকুর এই পৃথিবীর সমস্ত জীবের পাপ কর্ম গ্রহণ করে সেই পাপের ফল ভোগ করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা পাপ মুক্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারে। হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত, হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত, 3 লক্ষ নাম দেহ লয়ন অপতিত। 3 লক্ষ নাম দেহ লয়ন পতিত। শ্রী চৈতন্য বৃক্ষের 20তম মানে 20 শাখা হচ্ছেন হরিদাস ঠাকুর। তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনি প্রতিদিন অপতিত ভাবে, অপতিত মানে একদম ফিক্সড ডিটারমিন্ড 3 লক্ষ নাম কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন 3 লক্ষ নাম গ্রহণ করা সত্যি খুব অদ্ভুত ব্যাপার। কোন সাধারণ মানুষ এত নাম গ্রহণ করতে পারে না এবং কারোর পক্ষেই কৃত্রিম ভাবে শ্রী হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করা উচিত নয়। তবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক नाम ग्रहण करार संकल्प करे नाम करा प्रयोजन निर्दिष्ट संख्या। ठीक है, हम सोचे थे एक हम लोग ट्रिप करेंगे कहीं, तो जी इस बार जब कन्हई नटशाला जाएंगे एक दिन रख सकते हैं सिर्फ जप का, सिर्फ जप करेंगे बस। कैसे रहेगा? ओनली चैंटिंग 22 घंटा जब 3 लाख नाम एक दिन, एकदम शुद्ध जप करो, प्रसाद पाओ, स्नान करो, जप करो, बस। घर का काम कौन करेगा तब? कन्हई नटशाला में घर का काम मंदिर में प्रभु, मंदिर में जप। ठीक है, हम लोग रांची जा रहे हैं। माता जी कुकिंग करेगी बोल रही है। नहीं, हम लोग रांची जा रहे हैं कल, लास्ट में तो रांची से वापस आएंगे, कुछ कुछ भक्त वहां रह जाएगा खाली मुझे छोड़ के। 64 মালায় কত হয়? 64 মালায় 192 রাউন্ড, 3 লক্ষ মানে 192 রাউন্ড। এবার হিসাব করুন। ওকে, कहाँ थे हम लोग? তাই আমি নির্দেশ দিয়েছি যে আমাদের এই সংস্থার প্রতিটি ভক্তকে অন্তত করে 16 মালা জপ করতে হবে। প্রভুপাদ কথা, এই নাম নিরপরাধ ভাবে গ্রহণ করতে হবে। যন্ত্রের মতো নাম গ্রহণ করা অপরাধ শূন্য হয়ে নাম গ্রহণের মতো এত শক্তিশালী নয়। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। যন্ত্রের মতো নাম গ্রহণ করা অপরাধ শূন্য হয়ে নাম গ্রহণের মতো এত শক্তিশালী নয়। हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের 2য় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বুরন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুরন গ্রাম, সেখানে কিছুকাল থাকার পর
তিনি শান্তিপুরের সন্নিকটে গঙ্গা তীরে ফুলিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই বুরন গ্রামটা কোথায়? वीरेंद्र मेघरांग गुरु मालूम है? बुरान ग्राम बांग्लादेश हो गए। बांग्लादेश होगा। अच्छा, हाँ इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। प्रभु जी इसका अर्थ समझा दे। देखिए, अपराध रहित नाम वो तो श्रेष्ठ है जिसमें अपराध नहीं है, नाम अपराध बिना। और यांत्रिक যন্ত্রের মতো নাম গ্রহণ করা মানে लाइक अ मशीन जैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे से आप नाम जप कर रहे हैं, कोई भाव नहीं है, कोई अपराध भी होता है, एक मशीन जैसा। तो उससे तो अच्छा है ना अपराध रहित नाम। समझ में? यांत्रिक नाम माने एकदम एक मशीन जैसा, बिना भावना, बिना भगवान का नाम पे मन ध्यान लगा के भाव से जप करना होगा प्रभु जी, आस्ते आस्ते भाव से जप करना। इसका मतलब है प्रभु जी भाव से जप करना। যন্ত্রের মতো নাম গ্রহণ করা মানে लाइक अ मशीन विदाउट एनी भगवान के प्रति, नाम के प्रति कोई लगाव नहीं, ऐसे ही जस्ट हम लोग करते हैं ना बहुत बार, ऐसे ही मोबाइल देखते हरे कृष्ण मुंह से चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं, যন্ত্রের মতো लाइक अ मशीन विदाउट एनी अटेंशन, बिना अटेंशन। उससे क्या अच्छा है? यहाँ बोला जा रहा है उससे अपराध शून्य, बिना अपराध निरपराध जब हम जॉब करें वो ज्यादा बेहतर है ना। तो सिंपल है। यस बोलिए प्रभु। प्रभु हमको तो लगता है कि दोनों का दो उद्देश्य है, एक का है गिनती पूरा करना, वो जल्दी 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 करते जा रहे हैं जिसको यांत्रिक कहा गया, और दूसरा है भगवान का नाम यानी मन वचन कर्म तीनों एक साथ रहे। करेक्ट। दोनों में से कौन सा अच्छा है? वो जो भगवान के भाव में है तीनों, बस वही लिखा गया इधर। তো এখানে বুরন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি শান্তিপুরের সন্নিকটে गंगा तीरे फुलिया बसती स्थापन करें। ठीक है, कुछ दिन पर। अभी क्यों फुलिया में आ गया? क्योंकि महाप्रभु जन्म ग्रहण करबेन, तो बांग्लादेश छेड़े इखाने चले शांतिपुरेर पाशे। ठीक है, देखिए महाप्रभु जन्म के आगे सब एक एक करके सब आसपास आ गया। ये शांतिपुर से मायापुर में कौन आ गया? अद्वैत आचार्य, नंदन आचार्य, सब आ गया इधर, क्योंकि भगवान अवतरण होंगे। यस बोलून प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी আমি যখন ইয়ে করি জপ করি তখন আমি মানে ভগবানের লীলা স্মরণ করে জপ করি, এটাই। এটা কি অপরাধ মূলক না অপরাধ মুক্ত? म्यूट करुन। तो नाम जप करार समय भगवान का लीला स्मरण करना ये श्रेय नहीं है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं और सोचिए भगवान का गोवर्धन लीला स्मरण कर रहे हैं, तो फिर आपका मन गोवर्धन लीला में चला गया और हरिनाम पे मन नहीं लगेगा। नाम जप करने का समय भगवान का नाम को श्रवण करना वो महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप स्मरण कर रहे हैं गोवर्धन लीला का, तो क्या आपका श्रवण अच्छा होगा हरिनाम का? नहीं, क्योंकि मन तो एक ही है। एक मन को दो जगह तो नहीं लगा सकते ना, या तो गोवर्धन लीला में नहीं तो हरिनाम श्रवण में। মালা হাতে দিলেই সেই মাইয়াদের মানে বৃন্দাবন লীলা চলে যায়। যখনই মালা হাতে দেই তখনই বৃন্দাবন লীলা আমার মন চলে যায়। আমি জপ করছি আমি ইয়ে দিয়ে বহুবাদের চ্যান্টিংটা শুরু করে আমি জপ করি, আমি বিনা এতে করি না। যখনই মালা হাতে দিই তখন আমার লীলা স্মরণ এসে যায়। আমি জপ করছি মানে শুদ্ধভাবে জপ করছি, কিন্তু মন চলে যায় বৃন্দাবন লীলায়। আমি বুঝতে পারি না কেন, আমার প্রবলেম না আমি বুঝতে পারি না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। এটা প্রবলেম না, এটা প্রবলেম না, এটা মানে যেটা বললাম সেটাই। हाँ बोलिए नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे महाराज ने बोल रहा था कि श्रवण करना मैंने भगवान को बुला रहा है, साक्षात भगवान आपके सामने है, आपके भगवान को खड़ा करके अपना काम कर रहा है, तो अपराध तो होगा। तो ऐसे मन को मैंने जो बोल रहे हैं उसी को सुनना है, उसका अंदर लेना है। यही तो है चैंटिंग। दो मिनट क्यों है, भाव क्यों है? जसोदा माँ ने जैसे मैंने 2 मिनट मुनि ऋषि को
माने लाखों लाखों बरस तपस्या करके भगवान नहीं मिलते। मन को वो 2 मिनट में लगाना चाहिए, कभी नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बोल के जिसको बोल रहा है जो जब उसको सुनना है, खाली जगह श्रवण में है। हरे कृष्ण। আমি চ্যান্টিং করি 3:30 এভরিডে, ইচ এন্ড এভরিডে 3:30 আমি চ্যান্টিং শুরু করি, চান টান করে এভরিডে তিলক মালা নিয়ে 3:30 শুরু করি। আর কোনোদিন 1 মিনিটে এদিক ওদিক হয় না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। দুপুর 3:30? আচ্ছা। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের 16 অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মুসলমান কাজীর অত্যাচারের ঘটনা থেকে জানা যায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কত বিনীত ছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করেছিলেন। मालूम है ना कितना क्या हुआ था? वो मुसलमान काजी ने उनको 22 बाजार में पीटा, लोग भेजा पीटने के लिए, और हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे भगवान को। यू डोंट नो दिस पास्ट टाइम करुणा राधे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ हाँ, यस यस आई नो अबाउट इट। कि हे प्रभु इन लोग को क्षमा कर दे और हरि नाम प्रदान करे, भक्त बना दे, ऐसे कर दे। हाँ, तो और आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और उनको लगता है कि ही इज डेड ऑलरेडी। इतना पीटते वो सांस रोक लेते हैं, इसीलिए उनको गंगा में छोड़ देते हैं इंस्टेड ऑफ उनको लगता है मर ही गए। बट ठाकुर एक काम करो, तुम लोग तो मार रहे हो लेकिन हम मर नहीं रहे, तुम एक काम करो, तुम हमको गंगा में फेंक दो और जाकर बोलो अपने नवाब से कि वो हरे कृष्ण हो गया। हरे कृष्ण। ऐसे करके उन लोग एडवाइस दिया, हरिदास ठाकुर खुद एडवाइस दिया। तो শ্রী হরিদাস ঠাকুর কত বিনীত ছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করেছিলেন। অহৈতুকী कृपा कैसे लाभ किया महाप्रभु का? क्या क्या कृपा लाभ किया महाप्रभु का? बताइए एक एक करके सब। हरिदास ठाकुर की অহৈতুকী কৃপা লাভ করেছিলেন বলুন এক একটা করে সবাই। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भी प्रसाद लाके देते थे चैतन्य महाप्रभु। एक पॉइंट है, साक्षात भगवान महाप्रभु उनको प्रसाद लाके डेली देते थे। दूसरा, फिर मार खाते समय भगवान का ही स्मरण कर रहे थे उस टाइम। ओके, महाप्रभु का कैसे अहैतुकी कृपा? प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कोई? एक तो पॉइंट इंद्रावती माता जी ने बता दिया, साक्षात महाप्रभु डेली उनके लिए प्रसाद लाते थे। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। वो हरिदास ठाकुर वो जा नहीं पाते थे मंदिर में दर्शन करने, तो चैतन्य महाप्रभु आके खुद उनको दर्शन देते थे। हाँ, तो महाप्रभु आकर सचल भगवान आकर उनको दर्शन देते थे डेली, क्योंकि वो अचल भगवान का दर्शन करना नहीं अलाउड था। वेरी गुड पॉइंट। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। यस, वेरी नाइस। शरीर रखने के समय उनका इच्छा था, एक तो उन्होंने कंडीशन लगा था कि आपके आगे मैं जाऊंगा, क्योंकि आपका विरह हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी महाप्रभु ने तथास्तु। फिर और भी कंडीशन क्या था? आपको आपका दर्शन करते करते मैं शरीर त्यागूं। ये भी। और क्या था कि आपको दर्शन आपके चरणों को पकड़ के, वो भी ओके। और एक्स्ट्रा क्या क्या कि महाप्रभु उनको फिर बॉडी को लेकर निहलाया। फिर महाप्रभु ने, हम लोग सुना ना उस दिन कितना सुंदर लीला, महाप्रभु ने फिर समाधि भी दिया, समाधि में बालू दिया। फिर महाप्रभु ने भिक्षा किया सिंहद्वार जाकर, और भिक्षा उनका दाह संस्कार किया। कितना स्पेशल, हरिदास ठाकुर को जितना स्पेशल, बहुत कृपा मिला। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हरिदास ने जहाँ पर माने माला जाप कर रहा था चैंटिंग, तो वहां तो कोई घर द्वार नहीं था, कुछ नहीं था, छाया भी नहीं। महाप्रभु ने फिर जगन्नाथ का दंतन जाके वहां गाड़ दिया, तब सीधा कपुल होकर उनको छाया दिया। वेरी नाइस। हाँ, पंडित प्रभु।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 22 बाजार में जब वो उनको सजा मिल गया था तो महाप्रभु ने सारा वो जो कोड़ा अपने सिर पे अपने ऊपर लिया। वेरी बोल, वाह वाह वाह, वेरी गुड पॉइंट। और एक पॉइंट है, उनके द्वारा नाम का महिमा, वो उनसे मतलब नाम का महिमा पूछ के उनके द्वारा नाम का महिमा का वो ये करवा, गान करवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए हम लोग, वेरी नाइस। यस, तो उन्हीं के द्वारा महाप्रभु एक एक करके, जैसे रामानंद राय से कृष्ण प्रेम के बारे में, सर्वोच्च स्तर के बारे में पूछा, वैसे हरिदास ठाकुर से नाम का महिमा प्रकाशित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू। यस बंकिम प्रभु। হরিদাসের সারা জীবনে যে মনের অভিলাষ সেটা পূরণ করেছিলেন মহাপ্রভু। কারণ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা তোমার মনের বাসনা কি আছে, উনি বললেন আমার সারা জীবনে একটা মনের আশা আছে, সেটা পূরণ করো। উনি বললেন কি বন্ধুর ভাষা, বলে তোমার বক্ষে ধরিব কমল বদলোচন, আঁখিতে দেখিব তোমার কমল বদন, মুখে বলি হরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, এই বলি ছাড়িব মন প্রাণ। এই যে মনস্কামনা, এই যে মনোবাঞ্ছা মহাপ্রভু নিজে উনি সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু সেটা বাস্তবে পরিণত করে তারপরে তিনি বিজয় জীবন ইয়ে করলেন, অপগত হলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Yes, correct. तो महाप्रकाश लीला के समय भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को स्मरण करवाया। याद है तुमको जब 22 बाजार में पीट रहे थे, एक एक पीटने का देखिए, पीट रहे। कहते कि हरिदास ठाकुर को पीट रहा है यवन लोग। बोला एक कोड़ा पीटना मृत्यु हो जाता है, उनको तो पीट ही रहा था और फिर भी जीवित था। क्यों जीवित था? तो उसका बारे में महाप्रभु बताएंगे। Stop chanting, my son. No. These people are very cruel. They will kill you. Mother, I have heard unlimited blasphemy of the Lord with these sinful ears of mine. Therefore, I deserve much worse than this. Don't take this. This. तो महाप्रभु बताते हैं उनको महाप्रकाश लीला में कि इतना पीटा तुमको, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। क्यों? प्रभु जी যখন 22 বছরে বেত্রাঘাত করে, एक सेकंड একটু ধৈর্য ধরুন। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि क्यों कुछ नहीं हुआ। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु उनको बताया हरिदास ठाकुर को, क्यों कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। Because of the power of your love and compassion for them, Haridas, my chakra became powerless to move. But seeing how they were ferociously beating you, Haridas, I fell on your back and took those blows on my own body. Haridas, those scars are still present. I do not lie. Look, Haridas. Excellent, Prabhu, excellent. Seriously. আমি বলছিলাম যখন 22 বাজারে বেত্রাঘাত করেছিলেন তখন কি মহাপ্রভু জন্ম হয়ে গেছিল? যখন অদ্বৈত আচার্য যখন সুরধ্বনি গঙ্গা থেকে রিকভারি করে তখনও তো মহাপ্রভু জন্ম হয়নি এখন তখনও পর্যন্ত।
হরে কৃষ্ণ বাবু। यस करुणा राधे माता जी। শোনা গেল না প্রভু, ভুলে গেছে। আমি বলছি কি, যখন যে হরিদাসকে বাঁশি বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়, তখন কি মহাপ্রভুর কি জন্মগ্রহণ হয়ে গেছিল? কেন কেন জিজ্ঞেস করছেন? এই প্রশ্নটা কেন জিজ্ঞেস করছেন? জানি আমি বুঝতে ওইখানটা মানে কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে যখন অদ্বৈতাচার্য সুরধ্বনি গঙ্গা থেকে রিকভারি করে, তখন নাকি মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ হয়নি, সেটা আমার নলেজে। সেইটুকু জন্মগ্রহণ হোক বা জন্মগ্রহণ না হোক, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো বলছেন যে আমি সেই ব্যত্রাঘাত গুলো আমার পিঠে নিয়েছি। ভগবান তো করতেই পারেন এই জিনিসটা, না? সে তার বর্তমানে বা অবর্তমানে তো ভগবানের এই শক্তিটি তো নিশ্চয়ই আছে, না বঙ্কিম প্রভু? রাইট। হরে কৃষ্ণ। करुणा राधे माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक तो जब वो शांतिपुर आए थे हरिदास ठाकुर, तो एक गुफा में अंदर जाकर के मैंने देखी भी है, गुफा के अंदर बैठ करके चैंटिंग करते थे। और दूसरा पास टाइम ये भी है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही तो भेजा गया था ना, हाँ, लेडी को, एंड उसको ही उन्होंने भक्त बना दिया है। खाली बोलते थे वेट करो, मेरा चैंटिंग पूरा होगा, देन आई विल टॉक टू यू। करते करते 3 दिन बैठा दिया और वो 3 दिन में भक्त बन गई पूरी। ये भी उनके साथ। और वो पीटने का कारण क्या था? क्योंकि वो मुस्लिम थे। हरिनाम 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 यवन बोल के संबोधन करते थे, संबोधन करते हैं क्लास में। यवन कुल में जन्म लिया और इसीलिए हरिनाम करते थे, इसीलिए। ठीक है, आपको मालूम नहीं था ये बात? मालूम था प्रभु, थोड़ा भूल गई थी मैं। थोड़ा बहुत पहले सुने था, बहुत पहले जब आश्रय गौरांग प्रभु थे तब सुने थे ये बात। अच्छा, वो चूंकि भगवान का नाम लेते थे इसीलिए उन पर ज्यादा टॉर्चर होता। आगे लिखा है, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কত বিনীত ছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অহেতুকী কৃপা लाभ করেছিলেন। कल भी बहुत एक सुंदर घटना हुआ। दादू है প্রভুজি, যেতে হরিদাসের জন্ম নিয়ে তো দ্বৈত মত আছে না, দ্বৈতবাদ আছে। इनको शांत कराइए, या तो एक्टिव हो जाते इतना। एक सेकंड, सची सुतनाथ शिवास प्रभु आते हैं, कैसे शांत कराते हैं प्रभु जी? मालूम नहीं क्या करे एकदम। हरे कृष्ण। नहीं, शांत कराना मैंने वो वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, शरीर शांत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहा था? दादू आसन ना जी, सची सुतनाथ शिवास प्रभु नहीं है? नहीं, इसलिए तो मैं आवाज नहीं। कल वो याद आ गया, मायापुर से कुछ रशियन भक्त लोग आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर उन लोग को बेलव्यू में भर्ती कराया गया। तो फिर रशियन डिवोटीज था, तो उन लोग को बहुत ब्लड लॉस हो गया था, तो तुरंत भक्त लोग का ब्लड दरकार था। तो फिर कोर कमेटी में आया था, तो फिर ब्लड डोनेट के लिए कुछ भक्त लोग ने हाथ उठाया, मैं भी हाथ उठाया देने के लिए। फिर मेरा याद आया, मेरा शाम को विग्रह सेवा है, तो विग्रह सेवा में ना ये सब ब्लड वर्ड ये सब मैंने, आप समझ रहे हैं, वो नीडल विडल फुटाना वो सब ठीक हो गया, ठीक नहीं रहता। तो फिर मैंने सची सुतनाथ शिवास को भेजा, तुरंत चले गए और जाकर भक्त को ब्लड देके आ गया। प्रभु किस चीज के सफर में थे? गाड़ी में थे या ट्रेन में थे? क्यों, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? ठीक है, तो ऐसे ही था, ऐसे ही हुआ। बहुत प्रभु के लिए एक बार हरि बोल सबको बोलना चाहिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, आते हम लोग। अच्छा, इनसे सुन लेते, क्या इतना आतुर हो गया बोलने के लिए? बोलो बंकिम प्रभु की बोलছিলেন? আমি বলছিলাম হরিদাস ঠাকুরের জন্মটা তো দ্বৈতবাদ আছে। কেউ বলে যবন কুলে জন্মগ্রহণ করেছিল, আবার কেউ বলে যে বাঙালি ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যবন ঘরে উনি প্রতিপালন হয়েছিলেন। এই দুটো দ্বৈতবাদ আছে আমার স্মরণে, হতে পারে আমি রং। হরে কৃষ্ণ।
तो हम लोग वही सुनेंगे जो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है ना। समाज में क्या बोला जाता है, इससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? भक्त लोग को महाप्रभु कैसे अप्रकट हुआ वो भी तो बहुत कुछ बताया जाता है समाज में, लेकिन क्या वो चर्चा का विषय है क्लास में? चर्चा का विषय तो वही होगा जो कविराज गोस्वामी बोला है। समाज में क्या लोग बोलेगा वो सब क्या हम लोग चर्चा करेंगे भक्त लोग? फिर हम लोग भक्त तो है या हम लोग सड़क छाप कोई व्यक्ति है? समाज में क्या क्या बहुत कुछ बोला जाता है, तो हम लोग क्या उसमें कान देंगे ना, उसका इधर चर्चा करेंगे? তিনি যখন বেনাপোলে হরিভজন করছিলেন তখন এক সুন্দরী বেশ্যা তাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলার 11 পরিচ্ছেদে হরিদাস ঠাকুরের निर्जान वर्णित হয়েছে। निर्जान माने उनका प्राण माने हाउ ही लेफ्ट हिज बॉडी, वो डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग पढ़ा था उस दिन रामा भवन में। हाँ बोली माता जी। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু যে নাটক অভিনয় করেছিলেন তাতে হরিদাস ঠাকুর কোতোয়ালের भूमिकाएं अभिनय करें। पुलिस ऑफिसर कोतवाल, नया वर्ड हमने सुना। अच्छा, और जिसमें महाप्रभु लक्ष्मी देवी बना था। वो नाटक क्या चीज का नाटक था, किसी को मालूम है क्या? हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये चंद्रशेखर आचार्य के घर पे क्या नाटक हुआ था? किसी को मालूम है? हिरण्मय गौरांग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या नाटक हुआ था चंद्रशेखर आचार्य के घर पे? और लक्ष्मी का भूमिका में अच्छा ये चैतन्य महाप्रभु किए थे, तो और डिटेल्स दिया नहीं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या हुआ था नाटक का? यहाँ लिखा हरिदास ठाकुर पुलिस ऑफिसर हुआ था। अरे किसका कोतवाल दिखना पड़ेगा ना, वो नाटक हम लोग कर सकते हैं ना। ये কোথায় গেলেন চ্যাট জিপিটি মাস্টার? মনীষা মাতাজি আছেন? निर्मला माताजी, उनको बुलाइए तो। बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है ये मनीषा माताजी। भगवान सब भेज देता है एक से बढ़कर एक। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम लोग? বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল কিনা সেই সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। পূর্বে এই গ্রামটি 24 পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত ছিল। কোনো নিশ্চয়তা नहीं, इतना पुराना घटना है, लेकिन बोला जाता है वहां जन्म लिया है इन्होंने। अगला श्लोक 44 नंबर। तो हरिदास ठाकुर कितना नंबर? 20 नंबर शाखाएं हैं। गौरांग महाप्रभु का वृक्ष का 20 नंबर शाखा हरिदास ठाकुर है। अगला श्लोक 12। अच्छा ठीक। ये कल मैसेज आया था कि डिवोटीज फ्रॉम मायापुर मेट एन एक्सीडेंट, इमीडिएटली बेलव्यू नर्सिंग होम में भेजो। तो देखिए दादू चला गया। हरी बोल, हरी हरी हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি হাত দেখাতে পারছি না, এই কোতোয়ালের মিনিং বার করেছি, বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।
কোনো শহর বা এলাকার প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা বা শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা। कोतवाल। थानेदार थानेदार थानेदार। हाँ, तो आप तो अच्छा बता पाएंगे। हाँ पंकज बाबू। हरे कृष्णा बाबू जी, कोतवाल एक्चुअली उर्दू वर्ड है। पहले कोतवाली बोला जाता था, थाने को कोतवाली बोलते थे। कोतवाली का जो इंचार्ज हो गया वो कोतवाल। कोतवाली प्रभु जी वो कोर्ट को बोलते थे। नहीं, कोर्ट अलग है। कोतवाली कोर्ट को ही बोला जाता है उर्दू में। अच्छा, थाना को। ओके। आज भी तो बहुत सारे थाना में कोतवाली ही लिखते हैं। अच्छा, थाना मतलब किस जगह का कोतवाली है। अगला श्लोक 44 नंबर। ताहार अनंत गुण वो ही, ये क्या है? द्विमात्र क्या है? क्या प्रोनाउंसिएशन है? वो ही द्विमात्र। दिंग मात्र। अच्छा, यह दिंग मात्र मतलब एक अंश। अच्छा, बोलिए, रिपीट करिए। ताहार अनंत गुण कोही दिन मात्र। देखिए ये स्क्रीन शेयर जो हो रहा है इसमें ठीक है बंगाली, दिन मात्र। थोड़ा नीचे करिए। हाँ देखिए, दिन मात्र स्पेलिंग ठीक है। हाँ बंगाली बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ, ওই অ চন্দ্রবিন্দুটাকে ও করে দিয়েছে। আচার্য গোসাই যারে ভুঞ্জায় সাধ্য পাত্র। आचार्य गोसाई जारे भुंजाय साध्य पात्र। প্রহ্লাদ সমান তার গুণেরও তরঙ্গ। প্রহ্লাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ। যবন তারণেও যার নাহিক ভ্রুভঙ্গ। যবন তারণেও যার নাহিক ভ্রুভঙ্গ। দেহ সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লইয়া কোলে। দেহ সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লইয়া কোলে। নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে। হরি বল। নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে। তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। যে বা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ। যে বা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ। হরিদাস ঠাকুরের গুণ অন্তহীন, বহুত গুণ। এখানে তার সেই অন্তহীন গুণের একটি অংশ মাত্র আমি বর্ণনা করেছি। কোন বললেন? কবিরাজ গোস্বামী। তিনি এমনই শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন যে অদ্বৈত আচার্য প্রভু তার পিতার শ্রাদ্ধে প্রথম ভোজনের থালা ताके निवेदन करेছিলেন, जिसको श्राद्ध पात्र बोलते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी श्राद्ध में ना बहुत ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और भगवान को निवेदन करने के बाद प्रसाद अलग अलग प्लेटों में रखा जाता है। पहले ब्राह्मण भोजन कराया जाता है ना, और वो ब्राह्मण भोजन कराने के समय एक श्राद्ध पात्र यानी सबसे बड़ा जो प्लेट होता था जिसमें सब अलग अलग आइटम रहेगा, वो ब्राह्मणों का जो लीडर होता था उनको दिया जाता था। वो प्लेट का नाम है श्राद्ध पात्र। तो जब अद्वैताचार्य ने अपना पिता का श्राद्ध अनुष्ठान कर रहा था, पिता का नाम किसी को मालूम है? हमको जितना याद है कुबेर मिश्र था, ऐसे कुछ, ठीक ना? हाँ, यस यस। तो उन्होंने वो श्राद्ध पात्र, अच्छा अद्वैताचार्य ने बोला कि हरिदास ठाकुर को दो। हरिदास ठाकुर, अरे क्या कर रहे हैं आप सबके सामने, क्या कर रहे हैं? मैं एक यवन कुल में जन्म लिया हूँ, मेरे को यहाँ ब्राह्मण है, पंडित ब्राह्मण सब है, उनको नहीं, सबसे बड़ा योग्य ब्राह्मण वैष्णव तुम हो, तुमको दिया जाएगा श्राद्ध पात्र। ऐसे करके उनको कितना बड़ा सम्मान प्रदर्शन करवाया, दिया अद्वैताचार्य ने। वह इसीलिए लिखा है श्लोक में, आचार्य गोसाई जारे, आचार्य माने अद्वैताचार्य, ভুঞ্জয় শ্রাদ্ধ পাত্র। হরিদাস ঠাকুরের এত গুণ তিনি এমনই শুদ্ধ ভক্ত যে অদ্বৈত আচার্য প্রভু তার পিতার শ্রাদ্ধে প্রথম ভোজনের থালা তাকে নিবেদন করেছিলেন। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, उधर हम लोग सुना था कि जो होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बोलते थे, तो उसी टाइम में 500 करीब
ब्राह्मण भी उधर थे, तो वो लोग बोले कि हम लोग को इधर प्रसाद और पाएंगे नहीं, करके चला गया। तो वो लोग जब घर में गए जाके भोजन का कोशिश किया तो वो लोग आग भी नहीं जला और पानी भी नहीं मिला, इसे हुआ था। लास्ट में वो लोग को फिर उनको क्षमा मांगे। फिर से एक बार बोलिए, फिर से बोलिए स्लोली। हाँ, जो उनको हरिदास ठाकुर को दे दिया श्राद्ध पात्र, जो निमंत्रित ब्राह्मण थे 500 करीब ब्राह्मण आए थे, वो लोग बोले कि हम लोग आपका घर में भोजन करेंगे नहीं। तो वो लोग जब घर में गया तो घर में भी कोशिश किया, वो लोग घर में आग जला नहीं, और आग और पानी ये दोनों भाषण तो उनको किए थे, माने अद्वैत आचार्य जो को वहाँ का जो ब्राह्मण लोग थे वो आग और पानी भाषण किए थे, करके घर में गया तो घर में वो लोग का आग जला नहीं, पानी भी मिला नहीं, इसे घटना हुआ। लास्ट में वो सरेंडर किया। वहां भी लॉस हो गया, खाया नहीं, और जहाँ गया वहां भी खाना नहीं मिला। हरे कृष्णा, लॉस हो गया उन लोगों का। ठीक है, तो वो हम लोग एक बात चर्चा कर रहे थे ना कि कौन सा ड्रामा होगा जहाँ महाप्रभु लक्ष्मी बना और हरिदास ठाकुर क्या बना था, पुलिस ऑफिसर बना था, थानेदार। तो अद्भुत चरण प्रभु ने भेजा है, तो कोतवाल बना था ना। तो कोई एक ड्रामा था, वृंदावन पास्ट टाइम, भगवान का वृंदावन लीला के ऊपर, जो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे मायापुर में ये किया था। और श्रीवास पंडित इसमें नारद मुनि बने थे, तो नारद मुनि था ऐसे भी। अद्वैत आचार्य रोल ऑफ अ क्लाउन, क्लाउन बने तो जोकर बने थे, आई डोंट नो क्या है। और विदूषक माने जो हंसाता है सबको, विदूषक माने विद्वान, विदूषक माने जोकर ही, जो हंसी कराती, हंसी माने जेस्टर, इंग्लिश में जेस्टर बोलते, JESTER। और हरिदास ठाकुर प्लेड द पुलिस ऑफिसर। कौन सा होगा ये रोल, मतलब कौन सा लीला होगा भगवान का जहाँ पुलिस ऑफिसर भी था कोई। एनीवेज, महाप्रभु प्लेड द फर्स्ट प्लेड रुक्मिणी, पहले महाप्रभु रुक्मिणी बने, एंड देन आद्यशक्ति मतलब लक्ष्मी देवी। While नित्यानंद प्रभु played the part of an old woman। अरे वाह, नित्यानंद प्रभु ओल्ड वुमन बन गया। ये लीला करना ही है हम लोग को, जैसे भी इसका ड्रामा ढूंढिए कोई, अद्भुत चरण प्रभु आप ही ढूंढ पाएंगे। प्रभु जी का रोल फिक्स हो गया। While नित्यानंद प्रभु आपका भी रोल फिक्स हो गया, played the part of an old woman। मुझे पार्टिसिपेट करना है प्रभु। अच्छा, ये रोल में ओल्ड वुमन, जो भी रोल देंगे। जय हो। ठीक है। The Lord again sat on the altar in the mood of goddess of fortune। देखिए, लक्ष्मी देवी का रोल में महाप्रभु ने ऑल्टर में बैठ लिया। As the mother of universe and in spirit of affection for his devotees, he fed them breast milk। अपना स्तन का दूध पान करवाया भक्तों को, लक्ष्मी देवी यानी महाप्रभु इस रोल में। आई डोंट नो ये कैसे हम लोग स्टेज में करेंगे, भगवान जाने। लेकिन ये लीला तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। क्या महाप्रभु ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। पूरा ड्रामा मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रभु मोहन गौर प्रभु बता पाएगा ना नाटक का पूछिए। यस, अगला श्लोक थोड़ा टाइम हो गया, यही रखते 44 में रखते, ठीक है। एक है नेरो हिलो ग्रंथो अमृतो लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि।